हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राजन शिवानी व्लॉग्स। और मैं स्वागत करता हूं आपका इस नए एपिसोड में। मेरे पहले वाले वीडियो पे जो आप लोगों ने प्यार दिखाया है, जो आशीर्वाद दिया है, बहुत 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 थैंक यू उसके लिए। जो मैंने वीडियो डाला था, जैसा मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, वीजा इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट हैदराबाद, 30 से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड आज के वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर करने वाले हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज हो सकता है कहीं पे कुछ पॉइंटर्स मिस हो जाएं। इट्स नॉट कि मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, बट क्वेश्चन के अलावा भी जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, कुछ पॉइंटर्स है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको एड ऑन करने वाला हूँ। एंड आई वुड टेक यू थ्रू ऑल क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, उसमें किसी भाई साहब ने पूछा है, फॉर पेरेंट्स कैन वी गेट तेलुगु ट्रांसलेटर इन द कॉन्सुलेट ऑन द इंटरव्यू डे, और do we need to request them before the interview date itself? So yes, this is a genuine problem for parents. I would suggest when you actually reach the window, you can straightforward request them that we need a translator in any language like Telugu, Hindi, English, Marathi, Gujarati, Punjabi, whatever you want. There are some people of different regional languages. They'll come and they'll assist you. So there is no problem, and you are not supposed to ask anything in advance. That's first question. Now next, अगर मैं बात करूँ, इसमें लिखा हुआ है, can you post an English version of your content or summarize the text questions asked at the consulate? Yes, I have put it, the OFC document requirements in the description. Similarly, I'll put the documents required at visa interview, and also I'll upload the questions that will be frequently asked by the consular. So I'll do that. Meanwhile, I just wanted to dictate some of the questions that consular will ask. What's your employer? What's your current salary per month here that you are already withdrawing? What's the salary that you will be getting while being in the US? Who is the client? Will you be visiting the client location or your present employer location itself? What sort of job you will be performed there? And yeah, I mean, they might ask some detailed description about the jobs, like what exactly it means. Like if you say data engineer or data visualization or Java developer, so they might ask something like what's the importance of this to client. I mean, what sort of job you'll be performing. So they are just checking, I mean, whether you are capable or not. What detail that is mentioned is LCA document. LCA डॉक्यूमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो सही है या नहीं है, आपके रिलेवेंट है या नहीं है, कुछ फ्रॉड तो नहीं है, ये सब बस वेरीफाई होते हैं। इट्स नॉट अ इंटरव्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डरने वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल चिट चैट। So there is only questions or the interview for H1B person. There is no questions for H4 dependent persons. That's one important point because I hear this question a lot. तो डिपेंडेंट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है, उनका सिर्फ थंब इम्प्रेशन लगता है या जो बायोमेट्रिक प्रोसेस है, बच्चे के लिए सिर्फ फोटो अपलोड होता है, दैट्स इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है, ब्रो माय कंपनी एंड client office location is different, which location should I mention? Okay, so in our case also, company and client location is different. So accordingly, whatever the consular will ask, are you going to work on in-house project or the client location? So I personally said that it's for the client, and then they have asked what's the location, then I have said that it's Arizona, Phoenix. Next question, if I say, it says that thanks for sharing this information, thank you so much. I know your employer is LTI Mindtree, and through that you got everything. I filled the petition through consultancy. Okay, I mean, they have connected me personally. So I'll just dictate that. Let's say somebody is working in one organization, जैसे मैं LTI Mindtree में काम कर रहा हूँ, और मैंने जो वीजा इनिशिएट करवाया है वो किसी और कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई किया है, बिकॉज मुझे यूएस में जॉब चाहिए, और उस कंसल्टेंसी ने बोला है कि हाँ भाई वहाँ पे जॉब है, इंटरव्यू हुआ है, कंसल्टेंसी ने बोला कि भाई आप जाओ वहाँ पे, इस कंपनी में आपको मैं जॉब दूंगा। तो इस केस में क्या होता है कि आप ये नहीं बोल सकते कि एलटीआई माइंट्री ने मुझे वीजा इनिशिएट करके दिया है या उसके थ्रू मैं जा रहा हूँ वहीं पे, आई मीन ऑब्वियसली नॉट एट ऑल। तो जिस कंसल्टेंसी ने जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू करवाया है या जहाँ पे आपको जॉब मिला है, आप कंसुलर को वहीं पे बोलोगे कि हाँ भाई मुझे इस कंपनी में जाना है, इस लोकेशन पे जाना है, इस कंपनी के लिए मुझे काम करना है, सिंपल। ठीक है, देयर इज नो एम्बिग्यूटी, क्योंकि आपको आपका जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप बाहर से जॉब ढूंढ के जा रहे हो यूएस में, सिंपल। आई होप आई आंसर दैट क्वेश्चन। द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय सम अदर पर्सन आल्सो, बिकॉज उनका भी वही सीन था। सो आई होप बोथ ऑफ यू गेट योर आंसर्स, एंड इवन
बाकी लोग को भी उनका आंसर मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ आई से व्हाट्स द फी पे टू कंसल्टेंसी। अच्छा, तो ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्या फी आपने कंसल्टेंसी को पे करना है, वो आपके और आपके कंसल्टेंसी के ऊपर डिपेंड होता है, जितना उनको चार्ज चाहिए वो चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अगर देखूं, व्हेन वाज योर वीजा अपॉइंटमेंट। सो मेरा वीजा अपॉइंटमेंट जो है वो हमारा था 20 दिसंबर को, 17 को मेरा बायोमेट्रिक था, एंड दोनों ही मेरा हैदराबाद लोकेशन के लिए था। एंड देन 23 को मेरा वीजा स्टैम्प होके आ गया था, और मैंने प्रीमियम सर्विस लिया था घर पे डिलीवरी, तो वो आई थिंक 7 दिन और मुझे लग गए, तो 28-29 दिसंबर तक मुझे यहाँ पे घर पे मिला था। यू कैन एक्सपेक्ट कि वो 3 दिन से 10 दिन के अंदर आपको जो है वो पासपोर्ट जो है वीजा स्टैम्प होके मिल जाएगा। इफ आई लुक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू प्लीज शेयर वीजा इंटरव्यू क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया वीडियो में, आई लिस्ट डाउन ऑल द 6-7 क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड टू मी, एंड इवन नॉट ओनली मी, हमारे कंपनी के पोर्टल पे बहुत सारे लोगों ने सेम रिव्यू दिया है कि यार वो जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जॉब का इंटरव्यू देना है। I'll list down and I'll mention it in the description window, so you can check out the description. How far is the locker from USA consulate? Okay, H1B का जो अभी वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मिल रहा है वो हैदराबाद के लिए ही मिल रहा है, बाकी और कहीं पे भी नहीं इंडिया में। तो लॉकर सामने ही है, चेन्नई, कलकत्ता, इस सब में बहुत कम स्लॉट्स है, वो बहुत ही मुश्किल है आपको मिलना। नॉर्मली मैं बोलूँ 95% केसेस में आपको हैदराबाद ही जाना पड़ेगा। 100 मीटर्स का एरिया है कॉन्सुलेट के सामने, वहीं पे 2 लॉकर्स अवेलेबल है, आप किसी में भी जाके दे सकते हैं। 250 रुपीज इज द कॉस्ट, ठीक है, जो आपको पे करना पड़ेगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप उसके नियरेस्ट में होटल लें, जो हम लोगों ने लिया था, द डी कॉन्सुलेट होटल करके एक जगह है, बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम होटल है। अगर आप कंपनी की तरफ से जा रहे हो, आई वुड रिकमेंड, पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप वहां पे जाओ। सिर्फ 400 मीटर का डिस्टेंस है, एंड आप सारा जो भी है, वॉलेट है, मोबाइल है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, वो सब घर पे ही छोड़ के जाओ, ताकि आपको वहां पे दिक्कत ना हो। तो वहां जाओ, सिंपल आप डॉक्यूमेंट लेके, जो भी रिक्वायर्ड 7-8 डॉक्यूमेंट है इंटरव्यू के लिए, वो लेके जाओ, इंटरव्यू में जाओ, बाकी आप वहां से फिनिश करके आ जाओ, ठीक है। नजदीक में रहने का ये फायदा होता है। नाउ moving to the next question, somebody has asked me, hi brother, I have appointment next month in Hyderabad. My doubt is that I have used an old DS-160 confirmation for booking appointment instead of the latest one, which has minor corrections. Acha, okay. So I think I have already replied on this comment. Yes, as per my understanding, अगर आपका ओल्ड DS-160 में थोड़ा कुछ करेक्शन है, ठीक है, येट आई एम नॉट 100% श्योर, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू अपफ्रंट। बट जब मैं वहां पे गया था, बिकॉज मेरा भी I-797 में मिसमैच था, सो आई हैव टोल्ड देम अपफ्रंट कि भाई मेरा ऐसा ऐसा सीन है, नाउ प्लीज लेट मी नो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। सो उसने मुझे बोला था, बायोमेट्रिक के वहां पे जो पर्सन बैठते हैं, उन्होंने बोला था कि अगर आपका DS-160 में कुछ प्रॉब्लम होता, या फिर कहीं और एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम होता, देन वी कुड हैव डन समथिंग, बट योर प्रॉब्लम इज विद द I-797B फॉर्म, विच इज नॉट रिलेटेड टू बायोमेट्रिक सेंटर, विच इज गवर्न फ्रॉम द USCIS। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कुछ इशू है, तो वहां पे वो बैकएंड से करेक्ट कर देंगे, उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, बट आई वुड रिकमेंड टू कनेक्ट विथ योर इमिग्रेशन टीम ऑफ योर एम्प्लॉयर, एंड देन आई होप वो भी ऐसा ही सजेस्ट करेंगे कि जैसे आप बायोमेट्रिक सेंटर पे जाओगे, वो वहां पे नेसेसरी करेक्शन कर देंगे। सो इस केस में आई वुड रिकमेंड कि आप दोनों DS-160 लेके जाओ, ताकि वहां पे जो भी करेक्शन है वो वहां पे उसमें देख के कर दे। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, somebody has asked me, document checklist please. So yes, वीजा इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्स एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के डॉक्यूमेंट्स मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप एक बार लुकआउट कर लेना वहाँ पे, बिकॉज वो अभी अपडेटेड नहीं है, सिर्फ मैंने बायोमेट्रिक के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डाल रखे हैं चेकलिस्ट में। रेस्ट ऑल वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बाकी वीडियोस पे आ रहे हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट का एग्जैक्टली चेकलिस्ट है, कैसे बनाए, कहाँ से बनाए, मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, करना है, कॉन्कर में कैसे रिक्वेस्ट डालना है अगर कंपनी के थ्रू है, रिम्बर्स होगा नहीं होगा, कोई अकम्पनिंग पर्सन है उसका क्या सीन होगा, कैसे रिम्बर्समेंट होगा, ये सारे क्वेरीज के रिगार्डिंग हम एक नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाने वाले हैं आपके लिए बहुत जल्द। सो इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं पे रखते हैं। आई होप आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। सो या थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, या आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है, जो हमारा एफर्ट है वो वैल्यूएबल है, आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल राजन शिवानी व्लॉग्स। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को प्यार दिखाते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय।